Hey guys, I'm Reet Gupta, and I'm here to show you how to prepare for UGC NET 2025, which is about in 6 to 7 months. So, a very brief description about me. I've cleared JRF in ReNet June 2024 and NET in December 2023. So, let's start. Okay, so I have divided this into two category of people. First one are those who have a proper grasp on the basic, and the second category are those who have just started and they don't even know much of a literature and don't have a proper grasp. Okay, so basics, if you know, you can follow these things which I'm suggesting in the upcoming slides. Okay, so I'm making this video for the people who know the basics. Okay, I'm not a teacher, I'm just a student, and I can tell you what I did and what worked for me. I hope it will too, because everybody who is preparing is doing more or less the same thing. Okay. hmm okay, so you should first understand that now questions are not that easy, times are not the same, and you have to be very serious. हमेशा दिमाग में रखो कि पेपर क्लियर करना है. ओके, ठीक है. Hmm. Okay, the first know the why. Why do you want to pursue? Are you serious about doing your PhD, or you're about to apply for assistant professor exam and that's why you want to do NET? Or do you have something else in mind? Okay, so first thing is you should be serious about the preparation and that it will demand at least 4 to 5 months of your time. Okay, and the last 2 months should be very serious. Okay. So I wanted to pursue PhD, and that's why I wanted to get JRF because of also the monetary benefits that I'll get, and also I wanted to be to go into this profession. That's why. Okay, yeah. So let's start. How to begin with? First thing is people who are just trying to mug up the British literature. No, not necessarily that you should focus your entire focus should be on the British literature. No, times are not the same. Okay, all areas are equally important. And honestly, what worked for me was internet. I did fully internet based padhai and searching exhaustively. Okay, so I searched exhaustively. I'm so sorry, guys. So this, and then PYQs, note down the information. Whatever information you do not know or which you want to remember, note down. Okay, do it a lot. Noting down PYQ, these are the things which will help you. Okay, solve questions. Okay, solve questions. Self study. Say I did self study. I did not buy any YouTube materials or any course materials. It was only a YouTube free material for me that I used. Okay, and revision and test papers, these are the things which is prime in your preparation. First thing is PYQs, internet, self study, YouTube free materials, revision and test papers. Okay, everybody suggests that. I'm not suggesting anything different, but yeah, this is what it is. Okay. Let's talk about paper 1. So there are multiple teachers on YouTube. Okay, and people who do what suits you. Like I I used a lot. Like for paper 1, I saw Bharat sir. I saw it was very different, like selective things by selective. For example, Bharat sir, you can ekdam totally watch your. Yeah. So for paper 1, YouTube is the best thing, believe me. There are multiple teachers on YouTube, but yeah, it doesn't assure you that you can solve all the questions. What ultimately will work is that you solve a lot of questions to get the basic, to get the idea of what kind of questions are asked. Okay, so YouTube mein there are so many teachers. You watch what you like, what suits you, because मोर और लेस सब लोग एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, बहुत नया नहीं पढ़ाते हैं जो लिखा हुआ है बुक में. लेकिन हाँ, जो अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको, डू वॉच दैम. एंड और एक टीचर पर्टिकुलरली देखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन वॉच मल्टीपल टीचर्स. कोई ज़रूरी नहीं है अब एक टॉपिक एक से करो तो दूसरे टॉपिक भी आप दूसरे से कर सकते हो. अगर एक से समझ नहीं आ रहा वो टॉपिक तो दूसरे से करो. सो इट्स दैट वे. ओके, मल्टीपल टीचर्स आर देयर. यू सी वॉट सूट्स यू. 2-3 टीचर्स पकड़ लो. और भरत सर इज़ पर्सनली माई फेवरेट बिकॉज वो बहुत अच्छे से बताते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह, जो चीज़ मुझे बाकी उतने उतना अच्छे से समझ नहीं आया. एंड ऑल्सो बहुत लोग भरत सर को सजेस्ट करेंगे. ओके, या सो कैच कॉन्सेप्ट्स एंड मेक नोट्स. सी फॉर पेपर 1 आई वुड से प्लीज़ मेक नोट्स. नोट्स बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक तो सिलेबस लिमिटेड है,
ओके, सिलेबस इज ऑल्सो लिमिटेड एंड यू कैन मेक नोट्स व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लिटरेचर. आपको पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाए, बिकॉज इट्स सो वास्ट एंड दिस नो नॉट अ परफेक्ट सिलेबस फॉर दैट, राइट? सो फॉर पेपर वन, मेक नोट्स, बिकॉज वो आपको रिविजन के टाइम में बहुत काम आएंगे. एंड जस्ट ऐड ऑन करते रहो, स्टिकी नोट्स चिपका के ऐड ऑन करते रहो. मतलब एक बार नोट्स बना लिया, उसमें ऐड ऑन करते, थोड़ा स्पेस छोड़ के रखो, ऐड ऑन करते रहो. बहुत ज़रूरी है ऐड ऑन करना, ओके? और क्योंकि नोट्स मैंने बताया कि रिवीजन के टाइम में नोट्स ही आपके काम आएंगे. नोट्स और जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करा होगा उसके जो नोट्स बनाए होंगे, दैट विल एक्चुअली डू वंडर्स. ओके, KVS Madan, people ask for books, but KVS Madan personally I found it very boring, but it did help. Okay, because बहुत बार ये होता है कि उससे क्वेश्चन कुछ हिडन हिडन पूछते. तो सबसे पहले आप यूट्यूब से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बिकॉज पहले आप डायरेक्टली यूल स्विच टू अ बुक लाइक KVS Madan, यूल फाइंड इट बोरिंग, क्योंकि पेपर वन खुद में बोरिंग है. आई मीन ओके, पीपल विल वोंट सपोर्ट मी, बट हियर आई वुड से कि फॉर मी आई फाउंड पेपर वन कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत बोरिंग. जैसे एनवायरमेंट मेरे को बहुत बोरिंग लगता था. आई थिंक ओके, लेट इट बी. या तो KVS ओके, सो फॉर KVS मदान पढ़ो, बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, हिडन क्वेश्चंस टाइप के. वो बोरिंग है, बट वंस यू कैच द कॉन्सेप्ट्स and you understand the basics, it will help. Okay, you can read it easily, it's not a big deal. Okay, try scoring 32 plus or 35 if you can. ठीक है, don't go उससे नीचे, बिकॉज फिर आपके मार्क्स इफेक्ट होंगे, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है. लोग करते हैं बट देर आर वेरी फ्यू. तो ट्राई करो 35 तक, अगर पेपर वन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन वही है कि मेरे 36 आए थे, बट मेरा पहली बार जब दिसंबर में दिया था मैंने, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था. सो अगेन ऐसा नहीं है कि इतना नंबर लाने से आपके हो ही जाएंगे, बट बॉर्डर लाइन इज़ कि 35 तक सोचो कि उतना स्कोर करना है, 32 तक सोचो कि उतना स्कोर करना है. ठीक है, PYQs मत, जबकि सेकेंड बार में मेरे 33 आए थे. ठीक है, तो द थिंग इज़ कि ट्राई स्कोरिंग 32 प्लस एटलीस्ट इन पेपर वन. ओके, PYQs मस्ट, पेपर वन के लिए हो या पेपर टू के लिए हो, प्लीज़ PYQ मत छोड़ो. हर लोग एम्फोसाइज करते हैं कि PYQ, मतलब लगता है कि ऐसा क्या हो गया. लेकिन हाँ, पता है, देखो, क्वेश्चंस अगर रिपीट नहीं भी होते हैं ना, तो क्वेश्चंस के अंदर से जो आंसर्स, उसके ऑप्शंस होते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो PYQ सॉल्व करने का ये मतलब नहीं कि आप क्वेश्चन के आंसर ही देख लो, आप उस क्वेश्चन की डिटेल में जाओ. ओके, इसका ये मतलब है. ऑल राइट, सॉल्व क्वेश्चंस, नोट डाउन. सी, अल्टीमेटली व्हाट विल हेल्प यू इज क्वेश्चंस. जितना तुम पढ़ लो कितना भी, लेकिन अगर तुमने क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व किए, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, तो थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कि आपके लर्निंग मटेरियल से ही रिलेटेड हो, बट वो थोड़े ट्विस्ट किए गए हो. इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, या गो चैप्टर वाइज. यूट्यूब है, बट डोंट ट्रस्ट इट ब्लाइंडली. ओके, चैप्टर वाइज जाओ. एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर, जो चीज़ आपको पहले समझ में आ जाएगी जल्दी, गो फॉर दैट चैप्टर. या फिर जो डिफिकल्ट है, मतलब डजेंट मैटर, आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करो. ट्राई कंप्लीटिंग पेपर वन इन 1 month, इट इज़ डूएबल. ओके, इफ़ आई टेल यू दैट आई कंप्लीटेड इट इन, मतलब मैंने पूरा लेक्चर नहीं देखा था, बट आई वुड सजेस्ट कि लेक्चर्स देख लो. किसी एक टीचर को पकड़ो और उनके लेक्चर्स देख लो. मैराथन्स भी चलेंगे, लेक्चर्स देखना इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पूरा बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है. उसके बाद अगर आपको किताब पढ़ना है तो, मेरा तो बहुत मिक्स्ड रहा है. मैंने पहली बार में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो सेकंड बार में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा. सेकंड बार हम केवल 20 दिन पढ़ पाए मुश्किल से, जब मैंने प्रिपरेशन दिया, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया. फिर घर आ गए तो फिर थोड़ा पढ़ाई वाला सीन कम हो गया, मोटिवेशन कम हो गया ना. री नेट का तो सबको पता है कि क्या हुआ है. ओके, तो ये कहेंगे कि ट्राई कंप्लीटिंग द पेपर इन 1 month. ठीक है, पेपर वन एकदम सोचो कि पूरा लेक्चर्स देख लेने हैं. क्वेश्चन पेपर आप बाद में भी सॉल्व करो, चलेगा, बट ट्राई मेकिंग नोट्स एंड मेक नोट्स एंड प्रिपेयर पूरा पेपर वन का बेसिक इन 1 month. ठीक है, एंड इट इज़ डूएबल. थोड़ा फोकस रहोगे तो हो जाएगा सब. ओके, फोकस इन एरियाज अचीवेबल. व्हाट आई मीन बाय इज दैट सारे क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन नहीं बन पाते, और आई कैन नॉट इवन गारंटी यू कि किस एरिया के बनेंगे, किस एरिया के नहीं बनेंगे. But like areas like communication, teaching, research, comprehension, even DI, logical reasoning, maths, मुझे लगता है कि ये सारे इस एरिया के क्वेश्चन कंपैरेटिवली उतना ट्विस्टेड नहीं पूछते हैं, अगर आपको बेसिक पता होगा. जैसे DI, अगर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, DI अगर आपका बनेगा तो पूरा ही बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनता है कभी कभी. फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था दिसंबर में,
तो मेरा क्वेश्चन नहीं बना था। ओके, मेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं बना था क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया था। और इन स्पाइट ऑफ नॉट सॉल्विंग डीआई, मेरी कुछ 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन सही हुए थे। बट सेकेंड टाइम आई कुड सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चंस। तो उस टाइम ओके 33 ऐसा। तो या, सो इट डजंट गारंटी कि क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन ये जो एरियाज मैंने लिखे हैं, कम्युनिकेशन, टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, कंपैरेटिवली यहाँ के क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं। आईसीटी, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, इवन हायर एजुकेशन के कुछ कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं, एनवायरमेंट का मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। सो आईसीटी, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट का कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लेता है। तो बट हाँ, आप देखो कि आपका एरिया कौन सा स्ट्रांग है, इस पे भी डिपेंड करता है। बट मेरा एरिया आईसीटी, हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट है। आईसीटी एंड एनवायरमेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा वीक था, तो गड़बड़ हो गई उसमें। ओके, और उसमें भी क्वेश्चन थोड़े अलग पूछे जाते हैं यूजुअली, कि अगर आपको आएगा तो आएगा, सबको आएगा, वरना नहीं आएगा किसी को भी, इस टाइप के क्वेश्चंस। हाँ, नोट्स बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सब मैंने आपको पहले भी बता दिया। पी वाई क्यू के नोट्स बनाओ जो आपसे नहीं बन रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिलीव मी, अगर आप पूरा अच्छे से पी वाई क्यू सॉल्व कर लोगे, रिविजन कर लोगे, आई अश्योर यू कि तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा पेपर 1 अच्छा स्कोर हो जाएगा। और रिविजन भी ज़रूरी है। टेस्टिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप पी वाई क्यू बना रहे हो, लेकिन अगर अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे, जैसे मैंने मुझे कभी कभी लगता था कि जो मैं आंसर टिक कर रही हूँ वो आंसर सही है, लेकिन कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत निकलता था। तो मुझे आइडिया लगे कि मेरे कितने बन रहे हैं, मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग योरसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रिविजन कंसिस्टेंटली मल्टीपल टाइम्स, अगर दिमाग में रहे कि मेरे को करना है तो मेरे को करना है, इस टाइप का रखो। ओके, या तो टेस्ट पेपर्स आपको अगर लेने हैं, किसी का भी ले लो। मतलब आई डोंट हैव एनी आइडिया बिकॉज आई डेंट टेक टेस्ट पेपर्स। मैंने अपने आप को टेस्ट किया पी वाई क्यू से ही। मतलब मैं पी वाई क्यू सॉल्व करती थी और फिर स्कोर देखती थी कितना स्कोर कर रही हूँ। तो मेरे पहले तो बहुत गंदे स्कोर आते थे, 25 26 ऐसा। और मेरे को ऐसा लगता था कि इवन इफ आई डोंट रीड मच, आई गेट 25 26 ईजिली इन पेपर 1। बट पर वो भी है ना कि डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया हुआ होगा। तो 25 26 स्कोर करना इजी, बट वो जो 6 7 क्वेश्चंस और आपके ऐड ऑन होते हैं, वो वो डिसाइड करता है। ओके ओके, सो दिस इज़ अबाउट पेपर 1। मैंने कुछ नया सजेस्ट नहीं किया है, बट आई होप इट हेल्प्स यू। आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन पी वाई क्यू ऑन इंटरनेट। मेरे पास मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा था, and I even didn't have any proper synchronized notes, I would say. But what I found in PYQs also on YouTube, internet, तो मैं उसी को नोट करते जाती हूँ। इट्स वेरी इनकोहेरेंट, इट्स नॉट कोहेरेंट, इट्स नॉट सीक्वेंस में। ऐसा नहीं ऐसा कि मेरे पास ऐसे प्रॉपर सब चीज़ के नोट्स हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में नोट्स बनाने इज़ वेरी टफ। पता नहीं, लोग तो करते हैं बट मुझसे नहीं हुआ। ओके, यूट्यूब वॉज अ ग्रेट हेल्प, आई वुड से, स्पेशली कल्याणी वलथ मैम। थैंक यू मैम, आई वुड से हर, बिकॉज उनके नोट्स वो थोड़े टफ बताती हैं, बट वो उनके लेक्चर्स, अगर आपको मैराथन्स वगैरह जो उनके हैं, पिछले साल के भी, पिछले साल के भी, वो सब मैंने देखे थे। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा था, बट एटलीस्ट बेसिक्स पता चला, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम नहीं था मेरे पास। अगर आपके पास टाइम है, आई डोंट थिंक सो कि 4 5 महीने में इतना टाइम है कि आप किताब लेके पढ़ सको, लेकिन कुछ कुछ किताब आप लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो, ब्रिटिश लिटरेचर पे फोकस करना बंद करो, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर पढ़ने के लिए, किताबें बहुत बड़ी बड़ी आती है। जैसे मैंने सबसे पहले एडवर्ड एल्बर्ट लिया था, वो अपने बैचलर्स के टाइम में, जो मैंने खोल के भी नहीं देखा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया उसका लैंग्वेज। फिर मैंने रूटलेज खरीदा, जो अभी भी नया पढ़ा हुआ है, तो मैं पढ़ ही नहीं पाई कभी। सो इट्स की इंटरनेट पे ही देख के, यूट्यूब पे ही देख के पढ़ा जो भी पढ़ा। ठीक है, और हाँ, मतलब मैंने क्या क्या किया, पहला तो कॉपी पे तो नोट डाउन करती ही थी पी वाई क्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और वो सब, क्योंकि पी वाई क्यू बहुत सारे हैं। इवन कहीं कहीं टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत सारे क्वेश्चन सर्कुलेट होते हैं, और पता नहीं, कभी कभी मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ वो सब क्विजेज़ वगैरह को टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं। ऐसे लोगों को वो हेल्प किया है, बट पता नहीं, मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें काफ़ी एरर्स भी मिल जाते हैं मेरे को। ओके, सो इधर आई नोटेड डाउन द पी वाई क्यूज ऑन कॉपी नोट्स बना के, या लैपटॉप में भी नोट्स कभी विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट करके, या इवन अगर
फ़ोन पे पढ़ रही हूँ या फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं यूट्यूब में, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, सो दैट व्हेनेवर आई गेट टाइम आई कैन रिवाइज। ये मेंटालिटी रखो कि जहाँ भी तुमको मटेरियल मिल रहा है, जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसको एकदम अपने जेब में रख लो। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बार बार लिखे जा रहे हो, इतनी लंबी लंबी चीज़ें लिखे जा रहे हो, क्योंकि फिर अगर आप कर पा रहे हो तो करो अगेन, बट एकदम ऐसा रखो कि आपका नोट्स हैंडी हो और बोरिंग ना हो। जैसे जब मैं तैयारी करी थी सेकंड बार के लिए, तो मेरे तो पूरे फ़ोन पे स्क्रीनशॉट पड़े हुए थे पूरे, मैंने अभी डिलीट किए कुछ टाइम पहले। मुझे लगा कि फिर से तो प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा ना। ओके, सो या, तो वही है कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके रखो। अभी आप कभी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक बार देख लिया, एक बार देख लिया, जर्नल्स देख लिया, कौन कौन से जर्नल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, या फिर पीरियोडिकल्स जो भी हैं, या फिर अगर एस्थेटिक्स और आर्ट्स से रिलेटेड, इंडियन एस्थेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो, अगर आपको लग रहा है कि दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ इंपॉर्टेंट। वैसे तो पता नहीं चलता इंग्लिश लिटरेचर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, बट या गैदर एज मच एज इन्फॉर्मेशन यू कैन, एंड या जितना रिटेन कर पाओगे करोगे। देखो, अगर आपने कहीं देखा होगा वो क्वेश्चन, और अगर वो एग्जाम में आया, तो एमसीक्यूज में इंसान सॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो लेकिन हाँ, रिविजन भी इंपॉर्टेंट है। रिविजन करना इसीलिए हम कह रहे थे कि जस्ट कलेक्ट योर थिंग्स एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। बस दिमाग में रखो कि करना है। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस। ओके ओके। कल्याणी वल्लभ मैम के पूरे चैनल्स इधर उधर बहुत स्कैटर्ड है ना, तो कहीं कहीं से जहाँ से तुमको सिलेक्टिव कंटेंट मिल रहा है करो। विकीपीडिया वाज माय गुरु, एंड आई थिंक फॉर एवरीवन टू, विकीपीडिया इज गुरु। वर्ल्ड लिटरेचर इन फिफ्थ मैंने अपने सीवीटी पीजी के टाइम पे पढ़ा था, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट गाइस, बिलीव मी, अ लॉट। आई एम फ्रॉम जेएनयू, आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम जेएनयू, तो उसमें केवल 2-3 क्वेश्चन ही अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम में जब हम सीवीटी पीजी दे रहे थे। आई गेस 2022, या 2022 में जब हम सीयूटी पीजी दे रहे थे, तो बहुत मतलब बहुत डर का माहौल था, एंड आई वांटेड जेएनयू, तो इट तो 2-3 क्वेश्चन ही करना अफोर्ड कर सकते थे, गलती उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। ओके, तो वर्ल्ड लिटरेचर में फिफ्थ मैंने उस टाइम पढ़ा था। मैंने रिवीजन, क्योंकि मैंने बुक नहीं, मुझे नहीं पता था बेसिक्स, ठीक है, मुझे बहुत चीज़ नहीं पता था। मैंने अपना बैचलर्स बीएचयू से किया था, बट उस टाइम पे मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था। सो दैट बुक हेल्प मी अलॉट। आई थिंक ये बुक इस टाइम भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको कोई बुक रेफर करनी है, तो अगर लेटेस्ट एडिशन आपको मिले तो ले लो, मैंने तो पीडीएफ से पढ़ा था। ओके, तो नहीं, मैंने पीडीएफ और बुक दोनों से पढ़ा था, सॉरी। या, तो नो स्पेसिफिक बुक अश्योर्स यू दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। फॉर एवरी सेक्शन प्रिपेयर अ सेक्शन वाइज नोट्स, ठीक है, तो एक रफली जितने भी सेक्शन, कल्चरल स्टडीज, थियोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा, जो भी आपको थोड़े उस टाइप के नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एकदम स्ट्रक्चर्ड नोट्स हो, बट ऐसे जो सेक्शन वाइज एटलीस्ट आप डिवाइड कर सको, ठीक है। फिर 2 मंथ्स वेरी सीरियस प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, बहुत सीरियस हो जाओ 2 महीने के लिए, एकदम सोते हो तब भी दिमाग में वही चले कि मेरे को क्लियर करना है। अगर आप सीरियस हो, तो अगर आपके कुछ अदर प्लान्स हैं, तब थोड़ा आप लूजन हो जाते हो। अगर आप बहुत सीरियस हो कि मेरे को करना है, तो फिर सपने में भी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ओके, टेस्टिंग योरसेल्फ अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 2 के लिए भी, पेपर 1 के लिए भी, आई डिडंट बाय एनी टेस्ट पेपर्स बट सॉल्व PYQs and check scores. NTA tests, these are outdated, these are not new, but also you can do it. I did it कुछ टेस्ट के लिए, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए कुछ राउंड थोड़े थोड़े किए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं किए। बिलीव मी, इट्स नॉट टफ, ठीक है, जस्ट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आई थिंक ना कि दिस इज़ टोटली माई परसेप्शन, कि हम जब बैचलर्स मास्टर्स में आते हैं तो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो ढीला नहीं पढ़ना है, ओके, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट कॉलेज लाइफ में बहुत इंसान बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है। पढ़ते होंगे, एक्सेप्शंस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते होंगे, बट बट आई वुड से कि जस्ट बी कंसिस्टेंट, यू कैन डू इट। ओके, bye bye, all the best, and just believe in yourself, you can do that. I did, you can also do it. Okay, all the best, thank you.